सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के आज 18th कन्वोकेशन में हमारे बीच में हमारे what you call the inspiration behind this institution, who symbolizes the symbiosis itself. ऐसे Dr. S.B. Majumdar ji, who is the Chancellor of this university, Vidya ji, as your name, so your qualities, the Pro-Vice Chancellor, Rajni Gupte ji, Dr. Manchanda Sejol ji, and Shraddha ji. I think Professor Majumdar has spoken enough. Also, I was also inspired by his speech. So everybody of you would have also been inspired. So you think that I need to speak anything more? Because he is senior to me, he is so elderly to me. And not only this is your golden jubilee, his speech are also quite golden. और इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ. I congratulate you all, those degree holders, those PhD degree holders and others. And initially, I also congratulate Vidya ji. She has invited me, gave me this opportunity to see you, to come to you, and particularly listen to our great Dr. Majumdar Sahib. मुझे ऐसा लगता है कि जब when Mr. Majumdar was speaking about Vishwa Bandhutva, about world brotherhood, I think that this symbiosis itself symbolizes the world brotherhood. It symbolizes the coexistence, and probably the meaning of symbiosis may also be getting together, and getting together means Vishwa Bandhutva. So, as the name, so the quality of your university. So I congratulate you for this beautiful name and appropriate name, because your aim is Vishwa Bandhutva and the name of the institution is Symbiosis. So Symbiosis symbolizes that Vishwa Bandhutva, that coming together, that coexistence. I hope all of you would ever remember what Mr. Dr. Majumdar was speaking, and what this institution, this university indicates that we have to be ready to coexist with each other, not only within our country, but outside our country, outside the whole world. And I was very happy to know that Sri Majumdar ji started. Generally, we first think locally, but when I asked Vidya that from initial stage, 50 years back, you thought of it having a global idea, a global university. She said, 50 years back also we thought of global university. So I think you aspire and you fly so high that I have got no words for this. But I will tell you, my friends, I have, during my student days, I have read about one skylark, a bird. About two poets have written differently about the skylark. The one poet says, the skylark flies high, 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 high and vanishes. The other skylark, it also flies high, but its eyes are always on the ground, on its nest. So being global, flying high, I will request you, fly high, but your eyes should be on your nation, on your village, on your time, on your town. So
not only fly high, but our eyes should be on our nation, on our country. All of you, whether you belong to India or you belong to Congo or you belong to Malaysia or any other country. So this is must. But many times what happens? People think and people talk of global. People talk of Vishwabandhutta. And they forget that though our aim should be global, our aim should be Vishwabandhutta, but we have to be strong at our nation, at our country. We have to make our own country very strong. That's why Swami Vivekananda used to say, be bold, be strong. And he used to say, strength is life and weakness is death. So, first of all, we should all try that our village, our city, our state, and our country, it should be prosperous, it should have strength, power. So for that, what I will request you, because many things have been spoken, even in few words, Mr. Dharmendra has spoken so much, that our Prime Minister is talking about Atmanirbhar Bharat. So all your faculties are here, all you are doing here, and probably so many departments are here that can contribute a lot to the country. Simply because wherever I go to my universities, the government universities, the state universities, I dare say, I simply say and request the students there, please be Atmanirbhar, be researcher, be innovator. But you are already, whatever I used to say there, you are already doing here. So that's why I congratulate you and the Chancellor, the Pro-Vice Chancellor, the Pro-Chancellor, all of you and the faculty, you are already doing that. Because once upon a time, when we were reading, when we were studying, most of our your teachers, the senior teachers, your professors, when they were studying, in those days, people used to say, oh, you have to do research. And once some would have got a PhD, the doctor's degree, then he was supposed, oh, he or she was, he has done a lot. But nowadays, simply taking this PhD is not sufficient. Today, the world sees that what do you innovate? Even Dr. Majumdar was already speaking about this innovation. Kitna innovation karte ho? Today, this is the age of AI, artificial intelligence. And you have not only to be expert in artificial intelligence, about our India's tradition and heritage, Sri Majumdar was speaking, was Bharatiyata. And there's Bharatita. For that Bharatita, this AI should converge, this artificial intelligence should converge into AI, that is Adhyatmic intelligence. So if I have got that Adhyatmic, any one of you, not all of you can do that, I know, that is very big difficult task. But you try for that, this converging your artificial intelligence, this AI, into AI that is Adhyatmic intelligence. So that is a very big thing. I think if you can do that, really it will be appreciated throughout the world, and it will be something new, innovative for the world also. So that I will request you to, because you young people, young students, young graduates, and PhDs, all of you are so intelligent, so laborious, and you have done so much. And secondly, apart from that Atmanirbhar Bharat, I think the Vice Chancellor was speaking about how much you are doing in this entrepreneurship, that some are getting job here, some are going to be entrepreneurs. So it's a good, because many students, many aspirants rather, because they come to me when they are not students here, for their admission they come. So why I say that, why do you want to go to Symbiosis? They simply say, oh yes, if we go to Symbiosis, we will get placement in the university itself. So that is their priority. Good, that's good. But
I think you can inspire them and you can, I think, give the opportunity to them so that they can be entrepreneurs. Just the other day, I was visiting your another institution, that is Skill Development University. So they said that, yes, we have this new idea. So that is the new idea. Apart from it, that not only I said that don't create only job creators, job seekers, create the job creators. So we should also think in this line, and the remaining thing I think a bit I would like to speak in Hindi. You allow me in Hindi? टूटी फूटी अंग्रेजी है ना, तो अच्छा नहीं लगता है? वो मैंने इसलिए कहा कि मैं और मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये मातृभाषा पर बहुत जोर देते हैं। मैं महाराष्ट्र आया, मैंने अपने यूनिवर्सिटीज़ में गया, तो जाते ही ऑल कंडक्टिंग इन इंग्लिश। अब मैं यहाँ का चांसलर तो हूँ नहीं, मैं वहाँ का चांसलर हूँ। तो मैंने कहा, क्या अंग्रेजी क्यों बोलते हो, मराठी नहीं जानते हो क्या? समटाइम्स द वाइस चांसलर अंग्रेजी में पूरा भाषण स्पीच दे रहे हैं। अब यू हैव गॉट ग्लोबल, यू कैन स्पीक रजनी जी। तो वाई सो? मैंने let your chief guest who comes from outside and he doesn't know Marathi and even know good Hindi, I let him speak in English, no doubt, because everybody is now learning English and you should learn good English also. तो अब आप देखिए कि मेरे महाराष्ट्र के जितनी मेरी सरकारी राजकीय यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब संचालन मराठी में करते हैं। Here you cannot do that because you have got students from all over the country. You cannot do that in Marathi. Sometimes you cannot do it Hindi. हिंदी भी तो बोल भी सकते हो थोड़ा बहुत, क्योंकि सारे देश से लोग आते हैं। तो लेकिन अब वो सब मराठी में करने लग गए। और आपसे मेरा अनुरोध है कि when you are innovative, when you are graduating and having postgraduate degrees and doctor's degree from this university, this prestigious university, तो एक काम और करिए कि आप जिस प्रदेश के हैं, फ्रॉम whichever state you come, I am telling particularly to Indian students, not to my students from abroad, क्या हम ये कोशिश कर सकते हैं कि डिफरेंट स्ट्रीम्स में, अलग अलग विषयों में, क्या हम जिस प्रदेश के हैं उस प्रदेश की मातृभाषा में, रीजनल लैंग्वेज में, क्या हम वहाँ के लिए साइंस के किताबों को, साइंस के कोर्स को हम बना सकते हैं? आप बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेंगे। मुझे पता है, आप जब अपनी मातृभाषा में सीखते हैं, आजकल तो लोगों को शौक हो गया, देयर इज ए क्रेज फॉर इंग्लिश। अभी मकौले को बोल रहे थे, मैं तो सोचता हूँ कि वी शुड फॉरगेट मकौले, नॉट इंग्लिश बट मकौले। हमको क्या है कि हम अपनी जब मातृभाषा में बोलते हैं, हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं। आई थिंक आई एम स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। आप किसी अंग्रेजी स्कूल में पढ़े थे मजूमदार साहब? मराठी स्कूल में। अब मराठी स्कूल में जस्ट सी, मराठी स्कूल से पढ़े, प्राइमरी सरकारी स्कूल से पढ़े, और आज प्रोफेसर मजूमदार, डॉक्टर मजूमदार एक वर्ल्ड स्टेटस की यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। तो हम क्या अगर अपने भावी पीढ़ी के लिए, मैं आपके सामने प्राइमरी से पढ़ा हूँ, मैंने तो अंग्रेजी 6ठी कक्षा से सीखी, फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड, रजनी जी। पर ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ ऑल थ्रू टेल माई आस्क माई एडीसी एंड माई पीएस हियर, पीपल कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनके हेड्स आते हैं मेरे यहाँ, उनके एम्बेसडर आते हैं, तो आई नेवर स्पीक टू देम इन हिंदी और इन इंग्लिश, आई ऑलवेज स्पीक टू देम इंग्लिश। तो मैं 6ठी कक्षा से अंग्रेजी पढ़ा, उनसे अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो आपकी जो पीढ़ी आगे आने वाले बच्चे हैं,
अभी ये बोल रहे थे कि यस द स्टूडेंट इज़ फ्रॉम कॉन्गो एंड हिज मदर टंग इज़ फ्रेंच। तो फ्रेंच जैसे मैं हिंदी में आज के मराठी भी सब समझ जाता हूँ इधर 1-1.5 साल में आकर के, तो फ्रेंच के लिए अंग्रेजी सीखना कोई कठिन नहीं है। हाँ, वो एकदम मिलती जुलती है, या जर्मन के लिए। तो हम सब लोगों के लिए अंग्रेजी कितना कठिन था, जरा पूछे मजूमदार साहब से। ही 85, यू आर 85 और 86? हाउ ओल्ड यू आर? 86। तो ही 6 ईयर एल्डर टू मी, आई एम ऑल्सो 80। तो आप देखें कि हम लोग 6ठी कक्षा से अंग्रेजी पढ़े। आई आस्क मनी IAS ऑफिसर्स एंड न्यू IAS स्टूडेंट्स, तुमने कहाँ से पढ़ा? तो मोस्ट ऑफ देम से दैट ओ फ्रॉम प्राइमरी स्कूल और सम दिस what you call some other like Rajiv Gandhi or so, or central schools. For last 21 years, I am just observing very closely. There are so many English medium schools in my state, Dehradun, Mussoorie, and Nainital. But those whoever, every year some one or two, they get in IAS or IPS. Then I ask them, my dear friend, where did you take your primary education? वो सब बोलते हैं, उनमें से 90% बोलते हैं, 10% ही अच्छे अंग्रेजी स्कूल में, चूँकि अफसरों के बच्चे होते हैं तो अच्छे स्कूल में पढ़े ही होंगे। पर वो जो गरीब के बच्चे वो कहते हैं साहब हम तो प्राइमरी स्कूल से पढ़े हैं, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से पढ़े हैं। ये मैंने इसलिए कहा आप लोगों को कि अगर आप एक इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन करेंगे, हमारे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अभी आप बात कर रहे थे कि हमारे वाइस चांसलर बोल रहे थे, क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, व्हाट इज द सोल ऑफ दैट न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कि हम अपने रीजनल लैंग्वेज में हम बच्चों को प्रारंभ में उसकी मातृभाषा में मदर टंग में पढ़ाएं। और आप मदर टंग में पढ़ाना शुरू करिए, मैं आपको कहता हूँ कक्षा 4 से 5 से आप अंग्रेजी पढ़ाना शुरू करिए, वो स्टूडेंट मैं सोचता हूँ कि सबसे बढ़िया होंगे बजाय उनके कि आप जो शुरू से सोचते हैं अंग्रेजी सीख लो। अंग्रेजी सीखने में मजूमदार साहब जान चली जाती है छोटे बच्चों की। सबके माँ बाप अंग्रेजी पढ़ते नहीं, पढ़े हुए नहीं होते हैं। हाँ, रिमेंबर इट। तो इसलिए क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि दिक्कत क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज दैट कि वी डोंट हैव गॉट प्रॉपर बुक्स, टेक्स्ट बुक्स फॉर द स्टूडेंट्स। कौन करेगा ये? फिर व्हाट यू आर इनोवेटिंग देन? Having studied in this prestigious, very renowned university, then you can for future think that whenever, whichever state you belong, उस स्टेट के मातृभाषा में, रीजनल लैंग्वेज में क्या आप लोग अपने बच्चों के लिए पढ़ाई का कोर्स बना सकते हैं। बच्चों के लिए मीन्स पर्टिकुलरली फॉर दिस डिग्री क्लासेज एंड पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज। बाकी छोटी क्लासेज में तो कुछ ना कुछ होता ही चलता है। तो वो अगर हम तैयार करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका इस देश के लिए और समाज के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। तो ये मेरी आपसे विनती है। मुझे लगता है कि हम सब लोग एक चीज़ और आपसे निवेदन करूँगा कि हमारे संस्कृत में एक वाक्य है, साक्षरा विपरीता चेत राक्षसा भवन्ति। साक्षर को उल्टा कर दो तो राक्षस हो जाता है। साक्षर फिर राक्षस, उल्टा करो। तो इसलिए हम अच्छे पढ़े लिखे हैं, वी आर वेल एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड, तो क्या हम जीवन के अंदर जब इनोवेशन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आगे अध्ययन कर रहे हैं, अच्छे अच्छे फील्ड में जाओगे तो वहाँ फील्ड में जा कर के हम कभी भी डिस्ट्रक्टिव काम न करें। आई डोंट थिंक दैट योर स्टूडेंट्स, योर एलुमनी may be involving in such activities because in other colleges or schools or universities do so. परंतु हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम पढ़े लिखे हैं तो हमको विपरीत नहीं होना है, राक्षस नहीं होना है। यानी हमको हमेशा ऑल थ्रू अच्छे काम करने हैं ताकि आपके माता पिता का और आपके इस प्रसिद्ध ऐसे महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी का नाम दुनिया में ऊंचा हो सके। इसका भी अपना जरूर प्रयास करना चाहिए। ये मेरे आपसे विनती है, ये मेरी आपके एक प्रकार का निवेदन है। और जहाँ तक
हमारी संस्कृति में कहा है, क्योंकि हमारे चांसलर साहब ने बहुत सी बातें बोल दी हैं। तो जो आप आगे बढ़ते जाएं, मेरे यहाँ कभी कभी फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स मेरे पास नए लड़के IAS IPS होकर के आते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ, बच्चों देखो, तुम लोग बहुत पढ़े लिखे अच्छे लोग होते हो, बहुत अच्छे होते हो, but the moment you join the IAS, the IPS, the PCS, you develop some ego. और ईगो डेवलप करा तो फिर then go. If there is ego, then go. तो आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, मेरी ओर से विनती है, रिक्वेस्ट है कि हम सब लोग अपने अंदर कहीं पर भी ज्यों ज्यों ऊंचा उठते जाए, त्यों त्यों हमको विनम्र होना चाहिए। हमारी स्पेशलिटी इस यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए और ह्यूमिलिटी, हम कितने हम्बल हैं, और जितने जितने आप हम्बल होंगे उतने उतने आपका यश जो है चारों ओर फैलेगा। और इसीलिए अपने यहाँ कहा गया है विद्या ददाति विनयम, तो आपके यहाँ तो साक्षात विद्या है, ये खुद भी बहुत विनयी है, बहुत विनम्र है। इसलिए अपने को कुछ चीज़ों को, मूलभूत चीज़ें सीखनी चाहिए। उस दिशा में अगर आपका ये, चूँकि इसके जो एम्स हैं वो बहुत ही ऊंचे हैं, इसलिए मैंने कहा कि हम सब लोग उस उच्च आदर्शों को लेकर के चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और अंत में मैं इतना कहूँगा कि नई जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें आप सबके लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ है, दैट इज़ इंटरडिसिप्लिनरी। ये जो मल्टीडिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज है, मैंने बहुत बार देखा है। मैंने APJ अब्दुल कलाम को ही नहीं देखा कविता करते हुए, पोइम लिखते हुए। बहुत से साथ वैज्ञानिकों को देखा, ऊंचे ऐसे वैज्ञानिकों को जो अच्छा साहित्य लिखते हैं, लिटरेचर लिखते हैं। तो आप लोगों को नया मौका दिया है नई पॉलिसी में, मुझे लगता है कि आप लोग भी उसको यू बी फॉलोइंग दैट, आप लोगों ने उसको करेंगे। तो इंटरडिसिप्लिनरी, बहुत बार बच्चा मजबूरी से लेगा साइंस, क्योंकि उसको चाहिए नौकरी, उसको चाहिए रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, वो मजबूरी में लेता है। ये नहीं कि उसका उस पर पैशन है या कुछ है, आउट ऑफ कंपल्सन, नॉट आउट ऑफ पैशन। तो आप वो लेते हैं, अच्छा इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है, तो आप उसको भी पास करते हैं। लेकिन आपकी इच्छा रहती है मैं संगीत सीखूं, मैं उसमें खेल में क्रिकेट में आ गया हूँ, मैं फलां में आ गया हूँ, मैं कविता लिखूं। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो जो इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन है उस दिशा में भी आप सब बच्चों को, आप सब बच्चे आप तो बड़े हैं सब, तो आप सब लोगों को उस दिशा में भी कोशिश करनी चाहिए। और उस दिशा में अगर आप करेंगे तो देन आपका जो विकास होगा, जो डेवलपमेंट होगा, वो एक प्रकार से इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक होगा। उस संपूर्ण दृष्टि से, जिसको हमारे यहाँ संपूर्ण मानव कहते हैं, उस प्रकार के बनने में आपको सुविधा होगी। और चूँकि इस यूनिवर्सिटी का ऐसा इन्वायरमेंट है, इस यूनिवर्सिटी की सारा वातावरण ही ऐसा है कि यहाँ से उस दिशा में आप बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बढ़ सकते हैं। और इस 2020-21 के इस कन्वोकेशन के अवसर पर कुछ और नया आप सोचेंगे तो आपके माता पिता को खुशी होगी, देश को खुशी होगी, और सबसे प्रसन्नता होगी हमारे डॉक्टर बुजुर्ग से जवान लगते हैं, हमारे प्रोफेसर मजूमदार साहब को, डॉक्टर मजूमदार साहब को मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि शरीर दूसरे के हित के लिए होता है, परहिताय शरीर होता है। आप यदि सुख दे सकेंगे अपने माता पिता को, अपने प्रोफेसर्स को, अपने इंस्टीट्यूशन को और अपने देश को, तो आपको भी आनंद आएगा। मेरा विश्वास है कि आप सब जब यहाँ भी छोड़ेंगे विश्वविद्यालय को और नई फील्ड में जाएंगे तो निश्चित रूप से एक नई रोशनी, एक न्यू लाइट आप देश को देंगे। मैं आपके प्रति बहुत शुभकामना करता हूँ। वंस अगेन आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।